A very cheerful good morning to all of you, my dear students. I hope your Diwali was very fantastic and really awesome. But now we have to come back to studies. So, before Diwali holidays, we have left the chapter of my childhood in the very starting point. Okay, I think I just have explained you the overview, the introduction part of the chapter, and I have not started the chapter. So today I am going to start the chapter. I will be giving you, as I have given you all the overview of the chapter beta. So from the very first line you will be able to catch the chapter if you have read that overview carefully. So if you have not read before watching the video, just please go through the overview, and if you have read it, it's very good. So we'll just read the chapter and find out what's written in the chapter. Okay, so before you read, से start करते हैं हम लोग. Can you think of any scientist who have also been a statesman? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. ये बेटा एक, जैसा मैंने आपको ओवरव्यू में भी बताया था, ये जो आपके चैप्टर है माय चाइल्डहुड, ये विंग्स ऑफ फायर का एक एक्सट्रैक्ट पार्ट है. ठीक है, विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका एक छोटा सा पार्ट लेकर यहाँ रखा गया है और इसको एक चैप्टर के फॉर्म में आपको पढ़ना है. तो ये उन माय चाइल्डहुड चैप्टर में ऑब्वियसली इफ someone is talking about my childhood, it will be his own childhood, it will be the experiences, it will be the events of his own childhood of which he is talking about. So here we are reading about Mr. APJ Abdul Kalam. So he is talking about his own childhood and the author is asking you, like यहाँ पे तो author Mr. APJ अब्दुल कलाम ही है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी भाई वो लिखी गई है तो ऑब्वियसली वो खुद ही हैं. तो यहाँ पे जो राइटर इस बुक के हैं, जो इस बुक के प्रिंटर हैं, या आप कह सकते हैं कि इस बुक को जो जिन्होंने पब्लिश किया है, उन्होंने पूछा आपसे कि क्या आप किसी एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम सोच सकते हैं जो एक प्रॉपर स्टेट्समैन भी हों. लाइक फॉर एग्जांपल, स्टेटमैन का मतलब है बेटा द पर्सन हु इज़ वेरी नॉलेजेबल, हु इज़ साइंटिस्ट ऑल्सो, बट हु थिंक्स ऑफ हिज कंट्री ऑल्सो. लाइक मेनी साइंटिस्ट व्हाट दे डू इज़ कि वो साइंटिस्ट तो होते हैं बट दे डोंट थिंक ऑफ देयर ओन कंट्री. उनके अंदर वो ओन कंट्री, माई इंडिया या माई कंट्री वाली शायद फीलिंग नहीं रहती है. दे जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड साइंटिस्ट. ठीक है, क्योंकि उनको चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें नई इन्वेंट करना अच्छा लगता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड साइंटिस्ट. बट स्टेट्समैन वो होता है जो अपनी कंट्री को ध्यान में रखते हुए what is good, what is bad for my country, and ये my country वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसके माइंड में हमेशा रहता है, that is called a real statesman. तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वर्ड मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं बेटा. यहाँ पे जो लॉजिकल मीनिंग दी गई है स्टेट्समैन को लेकर, यहाँ पे वही मीनिंग है. ओके, सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, हु वॉज in 2002 11th president of India. Okay. So from paragraph number 1 beta, we are going to move. I was born into a middle class Tamil family in island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. अब जैसा कि मैंने कहा कि it is written by Mr. APJ Abdul Kalam because it is autobiography. Biography can be is written by anybody else about you, but autobiography means when I write about myself, then it is called autobiography. Okay. So he saying I was born, मतलब ये अपने बारे में खुद बता रहे हैं, तो I refers to Mr. APJ Abdul Kalam. I was born into middle class Tamil family in island town of Rameshwaram in erstwhile Madras state. Madras now called Chennai. ठीक है, तो चेन्नई में रामेश्वरम टाउन में इनका बर्थ हुआ था and he was from middle class Tamil family. My father Jano Abdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but
I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है अबाउट द नेचर एंड अबाउट द काइंडनेस ऑफ बोथ फादर एंड मदर ऑफ मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. पेरेंट्स उनके कैसे थे, क्या उनका नेचर था, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है बेटा. या जैसे इन्होंने लिखा है कि इन्होंने खुद बताया है कि मेरे फादर जो थे जैनुल आबदीन, इनके पास ना तो कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही इतना पैसा था, मतलब कि बहुत सारी एजुकेशन ये गेन कर लें या कुछ बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाएं, ऐसा कुछ पैसा भी नहीं था, ना ही कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन थी. बट इतनी डिसएडवांटेजेस के बाद भी इनके अंदर एक बहुत ही जेनरोसिटी थी, एक आप कह सकते हैं कि इनेट विजडम मीन्स बेटा कि जिसके नेचर में ही विजडम भरी हो, जिसको अंदर से ही पता हो, जिसके माइंड में ही ये चीज़ हो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. टू like you can say beta, the nature of wisdom, the inborn nature of wisdom, by birth जो nature होता है wisdom का, the quality of detecting right and wrong, correct and incorrect, it is called innate wisdom. ठीक है, ये किसी के पढ़ने या पढ़ाने से नहीं आती है, that is only by birth. ये आपको सिर्फ देख के और शायद एक्सपीरियंस के थ्रू ही आती है. तो ये इनके फादर में बहुत ज़्यादा भरी हुई थी. अब उनके साथ उनकी एक आइडियल हेल्पमेट थी एज हर मदर. जैसे कि मदर थी उनके साथ, तो उनकी एक आइडियल हेल्पमेट उनके साथ थी आशी अम्मा. मदर का नाम आशी अम्मा है एंड फादर इज नेम इज़ जैनुल आबदीन. अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंसिडेंट आप कह सकते हैं, इवेंट आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एक छोटी सी बात बताई गई है. अब्दुल कलाम खुद कह रहे हैं कि मुझे खुद याद नहीं है कि कितने लोग रोज़ मेरे घर में खाना खाते थे. मतलब उनको याद ही नहीं है कि मेरे घर में कौन आता था, कौन खाना खा के चला आता था. अच्छा, पहले की बेटा इन प्रीवियस टाइम्स इट वाज एन एटिकेट कि अगर आपके घर में कोई भी आता है तो आप उसे फूड सर्व करिए. ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन सा एटिकेट हुआ करता था. लाइक फॉर एग्जांपल आज भी आपके घर में व्हेनेवर सम गेस्ट्स कम तो यू सर्व देम फूड, यू सर्व देम वाटर, यू सर्व देम सम स्नैक्स और समथिंग लाइक दैट. बट प्रीवियस टाइम्स में स्नैक्स वगैरह का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था. द ओनली थिंग वॉज फूड एंड यू हैव टू सर्व देम. तो ये एक बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट था, एक जनरल आप कह सकते हैं एटिकेट था, एक जनरल मैनर था इन विच यू कैन शो द रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज इन फ्रंट. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यही बताने के लिए कि कितने ज़्यादा ये लोग जनरस थे, कितने ज़्यादा काइंड थे एंड कितने ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के थे इनके पेरेंट्स. यही एक छोटा सा क्वालिटी बताने के लिए आपको ये इवेंट बताया गया है. कि मुझे याद ही नहीं कितने लोग आते थे, खाते थे, और मुझे इतना पता है कि जितने लोग घर में होते थे उससे ज़्यादा लोग बाहर के आके खाना खाकर चले आते थे. दैट मीन्स कि देयर वर फार मोर नंबर ऑफ पीपल दैन देयर वर इन होम than the as the outsiders came and eat in the house regularly. मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ करता था कि हमेशा ही जितने लोग घर में हैं उससे ज़्यादा बाहर के लोग आए और खाकर चले गए. तो इस टाइप का आपसे यहाँ पे एक जनरॉसिटी आप कह सकते हैं, काइंडनेस कह सकते हैं, हेल्पिंग नेचर कह सकते हैं, या एक मैनर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं मैनर्ड पर्सन आप कह सकते हैं कि विथ मैनर. एक इनके जो पेरेंट्स थे वो फुल ऑफ मैनर्स, फुल ऑफ एटिकेट्स थे. ठीक है, तो एंड एज वी कैन सी मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, हम लोग एक जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक बच्चे से हम लोग उसके बैकग्राउंड का पता लगाते हैं. इवन in whatever way you behave, it tells about your background. तो ये भी यहाँ पे हम इस तरह से भी पता लगा सकते हैं कि मिस्टर APJ अब्दुल कलाम को जब हम देखते हैं, अपने आगे इमेजिन करते हैं कभी भी, तो किस तरह से उनका बैकग्राउंड रहा होगा, उनके फादर मदर क्या रहे होंगे, वी कैन इमेजिन. तो हाउ मैनर्ड, हाउ एटिकेटफुल हिज पेरेंट्स वर, तो वी कैन इमेजिन. ठीक है बेटा. नाउ मूविंग ऑन टू फर्दर बेटा. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. Generally, we whenever parents are very handsome, tall and smart and good looking, we assume that the child will be born as equally handsome, and if not handsome, at least 80 to 90% somewhat resembling like parents. We always assume that. Genetic transfer.
So just because of that, because of genetic transfer, because of resemblance of child to parents, तो हम लोग assume करते हैं कि whenever there is a very smart parent, तो obviously the boy has to be smart or the girl has to be smart. But in his case it was not so. It was like many children जो ऐसे होते हैं कि he was a short boy with undistinguished look, यानी कि undistinguished मतलब यहाँ पे है बेटा with नॉट सो स्मार्ट लुक, ठीक है. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, पेरेंट्स बहुत हैंडसम बहुत टॉल थे, बट ही वॉज नॉट वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक लुकिंग पर्सन. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. 19th century में इनका हाउस बना हुआ था एंड ये अपने ancestral house में रहा करते थे, ठीक है. It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम. यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ही बड़ा पक्का हाउस था इनका और लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था. मॉस्क स्ट्रीट के बगल में ही था, मतलब मॉस्क स्ट्रीट में ही था एंड रामेश्वरम में. इन्होंने पहले भी आपको बताया कि ही वॉज लिविंग इन रामेश्वरम इन ईस्ट वाइल मद्रास. तो ये आपको बता रहे हैं कि इनका एक बहुत ही प्रॉपर हाउस था मेड ऑफ लाइमस्टोन ब्रिक एंड मॉस्क स्ट्रीट पे था वो हाउस इन द रामेश्वरम town. Okay, so and that was, he is also telling you, it was his ancestral house. इनके फादर ने, मतलब इनके फादर के पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो खुद का अपना घर बना सके, वो ancestral house था, ठीक है. My austere father used to avoid all the inessential comforts and luxury. मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि ऑस्ट्रियर का वैसे तो मतलब होता है कि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड टू रूल्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड बहुत ही आप कह सकते हैं कि सिंपल एंड स्ट्रिक्टनेस फिल्ड and restricted of rules and regulations, very focused on rules and regulations. आप इस तरह का कह सकते हैं कुछ ऑस्ट्रियर का मतलब. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ जिस सेंस में लिखा हुआ है, इनका कहने का सेंस है कि इनके फादर तो ऑस्ट्रियर थे, इनके फादर बहुत ही रूल्स को लेकर प्रॉपर थे, लेकिन वो सिर्फ इन एसेंशियल चीज़ों के लिए थे. मतलब ऐसा है कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फीलिंग हॉट, लाइक फॉर एग्जांपल आपको बहुत गर्मी लग रही है, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी वार्म एंड इट्स अ सीजन ऑफ जून, तो अगर जून में इफ़ यू आर एबल टू कंफर्ट योर सेल्फ विथ फैन, अगर आप अपने आप को कंफर्ट दे पा रहे हैं सिर्फ फैन के हेल्प से, तो ये इनके फादर कुछ इस टाइप के थे कि वो आपको कूलर लाकर नहीं देंगे. ही विल नॉट प्रोवाइड यू एसी, वो आपको एक्स्ट्रा लग्जरी कभी नहीं देंगे. उनका ये कहने का सेंस है, ठीक है. ये नहीं है कि वो आपको मतलब बिना फ़ैन के रखेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं कहने का सेंस है बेटा. यहाँ पे ये कहने का सेंस है कि इनके फादर को कभी भी एक्स्ट्रा लग्जरी पसंद नहीं थी. लाइक फॉर एग्जाम्पल जितनी आपको चीज़ें चाहिए आप उतना ही यूज़ करिए जितने में आप कंफर्ट हो पा रहे हैं, दैट्स इट. एक्स्ट्रा चीज़ें इनको पसंद नहीं थी. तो लिखा हुआ है कि माई ऑस्ट्रियर फादर यूज टू अवॉइड, उनको अच्छा नहीं लगता था, वो अवॉइड करते थे सारे इन एसेंशियल जो कि ज़रूरी नहीं है ऐसे कंफर्ट ऐसी लग्जरीज को वो हमेशा अवॉइड करते थे. जहाँ काम कूलर से चल पा रहा है तो वहाँ एसी की क्या ज़रूरत है. तो ये इनका सेंस था कुछ, ठीक है. However, all the necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. देखिए यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिख दिया बेटा कि देखिए शुरू में तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फूड के टर्म्स में, मेडिसिन के टर्म्स में, क्लोथ्स के टर्म्स में मुझे सारी लग्जरीज हमेशा प्रोवाइड की जाती थी. मतलब सारी नेसेसिटीज़ मेरी पूरी की जाती थी. जब भी मुझे जो खाना चाहिए था मुझे खाना दिया जाता था. ऑब्वियसली मेडिसिन, क्लोथ्स जो भी चाहिए होते थे वो सब कुछ मिलता था, बट एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ओवर कुछ भी नहीं, ठीक है. सब कुछ एक लिमिट के अंदर इनको सब कुछ मिलता था. अब ये लास्ट में खुद कह रहे हैं कि इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत सिक्योर था. मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं पैम्पर्ड टाइप का, जिसमें बच्चे बहुत ही सिक्योर रहते हैं. उनके ऊपर फादर मदर हमेशा अपना एक ब्लेसिंग्स रखते हैं, जहाँ पे सारे कंफर्ट्स को फादर एंड मदर अरेंज करते हैं, जहाँ पे बच्चों को कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है फॉर ऑल द थिंग्स. तो ऐसा इनका चाइल्डहुड था कि इनको कभी भी खुद के लिए कुछ सो कॉल्ड एफर्ट नहीं करना पड़ा. इनके फादर मदर ने इनको सारी एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो ये इसलिए कह रहे हैं ऐसा. एंड देन ही इज सेइंग दैट
माई चाइल्डहुड वॉज वेरी सिक्योर बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। इनका ये भी कहना है बेटा कि मेरा चाइल्डहुड मटीरियली तो सिक्योर था ही, मतलब मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, जो सामान चाहिए थे, वो मुझे हमेशा मिले। लेट इट बी बुक्स, लेट इट बी फूड, लेट इट बी क्लोथ्स, लेट इट बी मेडिसिन, मुझे वो सारी चीज़ें तो मिली ही। बट इमोशनली भी मैं बहुत सिक्योर था। मतलब जब भी मैं बहुत पेनफुल कंडीशन में था, मुझे मदर की ज़रूरत थी तो मेरी मदर हमेशा मेरे साथ थी। जब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फीलिंग थी तो मुझे फादर की ज़रूरत थी तो मेरे फादर मेरे साथ थे। यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एक एज में, लाइक फॉर एग्जांपल आपका टीनेज होता है, बिफोर टीनेज होता है, आफ्टर टीनेज, अडल्ट एज, एक चाइल्डहुड एज, हर एज में आपके इमोशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर एज में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ चेंज होती है। तो उस हर टाइम पे लाइक चाइल्डहुड एज में क्या होता है बेटा कि स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे माई चाइल्डहुड की बात हो रही है। तो चाइल्डहुड एज में यू नीड योर क्वांटिटी टाइम ऑफ योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए अपने पास चाहिए होते हैं। जब आपको ज़रूरत हो उनकी तब वो आपके सामने हो, ऐसा चाहिए होता है। तो इमोशनली भी इनके पेरेंट्स हमेशा इनके साथ थे, हमेशा सपोर्ट में थे। इनको जब भी उनकी ज़रूरत थी तो obviously they supported him a lot, and not only him, all the brothers of Mr. APJ Abdul Kalam, उनके सारे ब्रदर सिस्टर्स को ऐसा ही सपोर्ट, ऐसा ही लव एंड केयर मिलता रहा। तो दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग वेरी लकी कि मैं बहुत लकी था कि मुझे ये सब चीज़ें मिली। और एंड दैट्स वाई ही सेइंग कि माई चाइल्डहुड वॉज वेरी सिक्योर। So till now beta only this much, and in the next class we'll be moving further. Okay, thank you class.